قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمن انتخاب، ووٹوں کی گنتی جاری، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ شروع۔ 11 حلقوں میں ضمن انتخاب کے دوران صورتحال مجموعی طور پر پرامن رہی، الیکشن کمیشن۔ جھوٹ اور منافقت کی سیاست زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی، لانگ مارچ کے ذریعے تبدیلی ممکن نہیں۔ کسی مسلح جتھے نے بدامنی پھیلانے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ عوام کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ آج جھوٹ اور فتنے کو شکست ہوگی، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ عمران خان کی سیاست جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہے۔ ہم مشکل وقت میں سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دی۔ عمران نیازی اپنی سیاسی ناکامی اور بد انتظامی کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آج جھوٹ اور فراڈ پر مبنی بیانیوں کو شکست ہوگی، معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات کی وجہ سے عالمی سطح پر خوراک کی قلت کا خدشہ۔ حالیہ تباہ کن سیلاب نے لاکھوں ایکڑ پر تیار فصلوں کو تباہ کر دیا۔ پاکستان جیسے زرعی ملک کو بھی اس نقصان کے باعث اشیاء خورونوش درآمد کرنا پڑیں گی۔ خوراک کا عالمی دن غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مجموعی عالمی اقدامات کی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کے اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب، ماحولیاتی تبدیلی سمیت علاقائی معیشت کو درپیش چیلنجز کا جائزہ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کی فنڈز کے حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ درپیش چیلنجز کے باوجود فنڈز پروگرام کو مکمل کرنے کا عزم۔ اسحاق ڈار کی سیلاب سے تباہی پر پاکستان کے لیے مزید پالیسی تعاون کی درخواست۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر نیوز شو ایٹ 6 میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے PTV نیوز کے ساتھ۔ I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity of purpose and they show that they are ready to discuss issues which have really kept us at a distance over decades and creating tension, not promoting trade, not promoting investment. This has to come to a stop. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے ضمن انتخابات کی۔ 8 قومی اور 3 صوبائی نشستوں پر ضمن انتخابات۔ پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں آج ووٹ ڈالے گئے ہیں، ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ کل 101 امیدوار ضمن انتخاب میں مد مقابل ہیں۔ الیکشن کمیشن کی پولنگ سٹیشنز میں موبائل فون پر سخت قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم نے ریاست کو بچایا اور عمران خان نے سیاست کو۔
ہم کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عطا طاہر نے کہا کہ ضمن انتخاب میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا خاندان حصہ لے رہا ہے۔ عمران خان موروثی سیاست کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو قومی اسمبلی میں آنا نہیں چاہتے وہ ضمن انتخاب میں حصہ ہی کیوں لے رہے ہیں؟ کیا کیا راز آپ کے سامنے اشکار نہیں ہوئے؟ 5 MNAs میں نے خرید لیے ہیں، اس کو لعنت قرار دے کر، کہہ کر کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے ہیں، منڈیاں لگتی ہیں، یہ لعنت ہے۔ پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 خریدے ہیں۔ اس کے بعد سائفر میں آپ کہہ رہے ہیں مرضی کے منٹس بنیں گے، اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تو آپ نے کھیلنا ہے، یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اور نہ یہ میدان کھلاڑیوں کا ہے۔ یہ سنجیدہ کام ہے سیاست کا، اور اس میں آپ نے اپنی سیاست کو ترجیح دی ہے، ہم نے ریاست بچائی ہے۔ اور ناظرین رخ کریں گے ملتان کا، جہاں این اے 157 ملتان کے 2 بڑے سیاسی خاندانوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ آج پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے ہوا اور ہم نے دیکھا کہ جو حق رائے دہی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے۔ پرامن انعقاد کیا گیا ضمنی انتخاب کا، اور اب ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم دیکھیں گے کہ جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں کاشف وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے خوش آئند بات یہ رہی کہ پرامن رہا، پورا دن جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا ووٹنگ کا، لیکن کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سامنے نہیں اور آیا۔ یقینی طور پر ہم نے گاہے بگاہے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ بھی کیا، اور 5 بجے پولنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے، اور اب 6 بجے کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جیسے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ہدایات بھی جاری کی گئی تھیں کہ 6 بجے سے پہلے آپ جو ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج نشر نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن ٹرن آؤٹ ہمارے رپورٹرز کے مطابق آج جو سارا دن صورتحال رہی اس کے مطابق بہتر رہا۔ بالکل جی، اور ملتان سے اس وقت فرحان مرزا نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ وہاں پر صورتحال کیا رہی۔ فرحان آگاہ کیجیے گا، اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ گنتی کا آغاز ہو چکا ہے ووٹوں کی؟ جی بالکل، سارے دن ہی بڑا دلچسپ یہ معرکہ رہا 2 بڑے سیاسی خاندانوں کے درمیان۔ ملتان کے 2 بڑے سیاسی خاندان ہیں اور 2 بڑی سیاسی پارٹیاں، تو یہ کمپٹیشن جو تمام جو اب مسلسل ہم نے دیکھا کہ 3 مہینے کی یہ کمپین تھی، میسو کمپین تھی، جگہ جگہ لوگوں کو ٹچ کیا گیا، اور آج اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کوئی 35 سے 40% رہنے کا امکان ہے یہاں پر، کیونکہ جو اس کمپین، کیونکہ جہاں گیلانی خاندان کی طرف سے بھی اور قریشی خاندان کی طرف سے جو ہے وہ مسلسل لوگوں سے رابطہ کیا گیا، ان کے حلقوں میں گئے، اور تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرسنٹیج جو ہے جو خاص طور پر یہ دیہی علاقہ تھا 80%، آپ علاقے وغیرہ آپ دیکھیں تو 80% سے زائد علاقہ یہ دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، جبکہ 20% علاقہ جو ہے یہ شہری علاقوں پر مشتمل تھا۔ اس میں مجھے آج جو ہم نے جو پولنگ اسٹیشنز کا مختلف وزٹ کیا جو شہری اور دیہی علاقوں کا، ایک چیز میں ذرا ڈفرینس نظر آیا، وہ یہ کہ عموماً جو مسلم لیگ نون کا جو ووٹر جو تھا اس نے اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں علی موسیٰ گیلانی، تو انہوں نے ان کو ووٹ کاسٹ کیا ہے اس دفعہ۔ تو ووٹ کاسٹ کیا اس وجہ سے جو مقابلہ ہے مہر بانو کے درمیان اور علی موسیٰ گیلانی کے درمیان تو نیک ٹو نیک فائٹ ہے، اور یوزلی اس طرح تھا کہ پہلے دیہی علاقوں میں زیادہ پرسنٹیج تھی وہ علی موسیٰ گیلانی، اور جبکہ شہری علاقوں کے اندر زیادہ تحریک انصاف کی طرف جو ووٹ بینک جو تھا وہ نظر آتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بڑا بیلنس نظر آیا ہمیں ووٹ، اور اچھا خاصا ووٹ بینک جو تھا ہم نے شہری علاقوں کے اندر یونین کونسل جو تھیں وہاں پر کافی زیادہ ایک امپیکٹ نظر آیا، خاص طور پر جو نون لیگ کا جو کیونکہ نون لیگ کا جو ووٹر جو تھا اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گیلانی کو جو ہے ان کو بھی ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ جی صحیح فرحان، اس کا مطلب ہے جس طرح اس میں ٹرن آؤٹ کی بات کی کہ 35 سے 40% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہے گا، اور صورتحال کافی بہتر لگ رہی ہے، اور آپ نے موازنہ بھی کیا کہ دیہی علاقوں میں جو پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے تھے اور جو شہری علاقوں میں پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ خوش آئند ہے کہ اب جو ہے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا، اور اس میں سب سے اگر اس حلقے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی ڈائنامکس بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ 2008 کے الیکشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں شاہ محمود قریشی نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فتح حاصل کی تھی۔ 2012 میں علی موسیٰ گیلانی ضمنی انتخاب کے اندر یہاں سے MNA منتخب ہوئے۔ پھر 2013 کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے عبدالغفار ڈوگر نے یہاں سے فتح حاصل کی۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے زین حسین قریشی نے فتح حاصل کی، جبکہ علی موسیٰ گیلانی اس وقت دوسرے نمبر پر رہے۔ ان دونوں کے درمیان جو ووٹوں کا ڈفرنس تھا وہ تقریباً 7,000 تھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں 2022 کے اندر تو نوجوان ووٹرز کا بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کی پوری جو ریڈنگ ہے اس میں جو
2018 का जो इलेक्शन था उसमें कुल वोटर्स की जो तादाद थी वो तकरीबन 3,80,000 से ज्यादा थी, जबकि इस दफा 4,62,000 समथिंग वोट्स मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरहान मिर्जा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से आप आगाह कर रहे थे। आज ज़िमनी इंतखाबात हुए और कौमी और सूबाई असम्बली की कुल 11 नशिस्तें हैं काशिफ जिन पर आज वोटिंग हुई है। सही, मुर्तज़ा सोलंकी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो इंतखाबात हो रहे हैं इनके नताइज के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू चल रही है और नताइज के हवाले से भी जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे हैं कि टर्न आउट काफ़ी बेहतर आ रहा है। अभी अगर मुल्तान की बात करें और खास तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की बात करें तो टर्न आउट काफी बेहतर बताया जा रहा है। ये जो इलेक्शन है इनके जो नताइज होंगे इनको आप किस तरह से देख रहे हैं कि हमारी मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? देखिए, अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है वोटिंग खत्म हुए, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जो शरह तनासुब है, जो टर्नआउट है वो कैसा है। अगर टर्नआउट बहुत बेहतर है, जाहिर है उसके नताइज फर्क होंगे, लेकिन अभी तक जो बात नजर आ रही है वो ये है कि कौमी असम्बली के कुछ हलके हैं जहां पर इमरान खान के मुकाबले पर जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी पोजीशन बुरी नहीं है, अच्छी है, बल्कि बेहतर है। जैसे कि एमल वली खान की और बिलोर साहब की, मुल्तान की, इनके बारे में तो, और हकीम बलोच की कराची में। लेकिन ये इब्तदाई मालूमात है। इमरान खान इस मुहिम को 7 जगहों से खड़े होकर ये नहीं साबित करना चाहते कि कोई वो पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो फर्ज करें सारी सीटें जीत जाएं तब भी उनकी उतनी सीटें नहीं बनती, सीट तो सिर्फ एक ही बनती है, तो वो उनका मकसद नहीं है। पार्लिमान से तो वो पहले ही निकले हुए हैं, तो वो बुनियादी तौर पर वो अपने जो मुजव्वज़ा जो लॉन्ग मार्च है उसको एक तरह से मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप इस बात को जरूर ज़हन में रखें कि अगर एक भी सीट पे इमरान खान हारता है तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो ये जो एक मिथ बना हुआ है ना कि जी इमरान खान बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, कल एमल खान कह सकता है अगर वो जीतता है कि मैं इमरान खान से बड़ा लीडर हूँ, यही बात आबिद शेर अली कह सकता है, या जो भी जीतता है उसके मुकाबले पे। तो मुझे लगता है कि ये खासा एक गैर सियासी जुआ खेला है इमरान खान ने। सही। सर, ये फरमाइएगा कि आज जैसा कि पूरा दिन हमने देखा कि टर्न आउट भी काफ़ी बेहतर रहा, और टर्न आउट अगर बेहतर रहा तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये एक मुस्बत जो है वो इशारिया है इस हवाले से कि हमारा जो वोटर है, नो डाउट कि कैसी सिचुएशन है, सूरत हाल क्या चल रही है, वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहता है, वो सियासी तौर पर अब बाशऊर हो रहा है और उसको अंदाज़ा है कि उसका वोट कितना कीमती है, बहरहाल उसे अपने वोट का इस्तेमाल करना है। देखिए जी, जमहूरियत में तो आप यही कहेंगे कि वोटर्स को अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर उनको ये खदशा हो कि इसके नतीजे में फर्ज करें कि जी इमरान खान जीता है किसी नशिस्त पे, तो वो उनकी नुमाइंदगी नहीं करेगा, तो फिर उनको वोट देने का क्या फायदा हुआ। तो इस वजह से ये उनको रोकती भी है, एक तरह से हौसला शिकनी भी होती है। लेकिन जब ये मुकम्मल होगा काउंटिंग, ये जो वोटों की गिनती, तो पता चलेगा कि कितने फीसद कहाँ पर वोट पड़े। सही। मुर्तज़ा सोलंकी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आज होने वाले इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे कि जो भी सूरत हाल चल रही है, जो भी नताइज आएंगे उनका आम इंतखाबात पर, मुल्क की सियासत पर बड़ा अहम जो है वो असरात इसके मुरतब हो सकते हैं। और कौमी असम्बली के हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब असम्बली के 3 हल्के हैं और वक्तन फ़वक्तन हम आपको अपडेट भी करते रहे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में, और आज पूरा दिन जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहा और देही इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी टर्न आउट के हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करते रहे और अभी भी अपडेट कर रहे हैं कि काफी बेहतर रहा है। बिल्कुल, टर्नआउट काफी बेहतर रहा है। और कुछ कराची की अगर हम बात करें काशिफ, तो वहां पर कौमी असेंबली के हल्के NA 237 मलीर 2 और NA 239 कोरंगी कराची 1 की खाली नशिस्तों पर आज ज़िमनी इंतखाब हुआ है और इन्हीं दोनों हल्कों में 33 उम्मीदवार ऐसे थे जो मैदान में मौजूद रहे और हमने देखा कि वहां पर भी जो वोटिंग का अमल है वो दिन भर जारी रहा। वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया और आज चूंकि छुट्टी का दिन था लेकिन इसके बावजूद भी वोटर्स का पोलिंग स्टेशन की जानिब आना, वोट कास्ट करना यकीनन खुश आइंद है। और फिर
सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़े ख़ास इंतजाम किए गए थे। पूरी कोशिश की गई कि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो और पुरअमन तरीके से जो पूरा अमल है वोटिंग का वो मुकम्मल हो। और हमने देखा कि पुरअमन तरीके से ही ये अमल मुकम्मल हुआ और अब गिनती का अमल शुरू हो चुका है। बिल्कुल, अली असगर अरबाब हमारे नुमाइंदा कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली, बताया गया पोलिंग का अमल तो खत्म हो चुका है, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, आज जो है सुबह से ही जो है पोलिंग का अमल जारी रहा। कौमी असेंबली की 2 नशस्तों 237 और 239 पर सुबह में लोगों का तादाद काफ़ी कम था, क्योंकि आज इतवार है और कराची के लोग आपको पता है कि देर से उठते हैं, तो उस वजह से जैसे जैसे वक्त गुजर गया तो उसके बाद जो है काफ़ी टर्न आउट बेहतर रहा। तो ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल शाम के 5 बजे तक जारी रहा। और आज जो इलेक्शन हुए हैं वो एक ट्रांसपेरेंट और एक पीसफुल माहौल में हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी यही बताया कि उन्हें उनकी जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं वो तो उनको कोई भी कंप्लेन कहीं से भी मौसूल नहीं हुई और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। तो 5 बजे के बाद जो है गिनती का अमल शुरू हो चुका है। अभी इस वक्त गिनती जारी है और इलेक्शन कमीशन ने के तर्जुमान के मुताबिक बताया गया है कि मीडिया 6 बजे तक कोई जो है ना इसके हवाले से खबर नशर न करे नताइज के हवाले से। तो अब जो इलेक्शन कमीशन ने भरपूर इंतजाम किए गए हैं, जो DRO के ऑफिसेज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के ROs के जो दफातर हैं कराची में, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जो है सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जो है वो इंतजाम किए गए हैं। और जो इलेक्शन के नताइज हैं वो बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाए जाएंगे और डैशबोर्ड की जो भी जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे वो डैशबोर्ड्स के ज़रिए जो है तमाम मीडिया को दिखाते जाएंगे। और वो क्विकली जैसे इससे पहले बाई इलेक्शन हुए उसमें जैसा जल्द से जल्द नताइज का ऐलान किया गया, तो इसी तरह के इंतजाम जो हैं इस दफ़ा भी किए गए हैं। तो जैसे जैसे अभी नताइज आते जाएंगे तो उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो नताइज जो है मीडिया के सामने रखे जाएंगे और उसके बाद मीडिया जो है उसको नशर करता रहेगा। तो इस वक्त गिनती का जारी है गिनती, और कुछ पोलिंग स्टेशंस पे जहाँ पे नताइज और जैसे जैसे नताइज सामने आते रहेंगे वैसे वैसे नशर किए जाते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए थे और इससे पहले भी जिस तरह से इंतखाबात हुए थे और अब भी इंतखाबात की जो नताइज हैं वो बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाए जाएंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक 5 बजे तक पोलिंग का अमल रखा गया था और 5 बजे के बाद जो तमाम जो वोटर्स हैं वो जो उसमें मौजूद रहेंगे वो वोट डाल सकेंगे, उसके बाद जो है वो वोटिंग नहीं हो सकेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ जो है वो लम्हा ब लम्हा बाखबर रखे रहा पूरा दिन। हमने देखा कि हमारे रिपोर्टर्स भी फील्ड में मौजूद रहे, मुख्तलिफ हलकों की सूरत हाल से उन्होंने आगाह किया, वहाँ पर टर्न आउट कैसा है, इंतजाम कैसे हैं। हमारे नुमाइंदगान जो हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ हलकों से वो हमारे साथ मौजूद रहे। हमने उनसे बराह रास्त वहाँ की सूरत हाल भी जानी और पूरी कोशिश की कि जो पूरा दिन सूरत हाल चल रही है, वोटिंग का जो अमल जारी है और वोटर्स का जो पोलिंग स्टेशन का रुख करना है, उस तमाम तर सूरत हाल से फिर इंतजाम के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से खास तौर पर अपने नाजरीन को आगाह रखा जाए। तो इसमें बड़ा अहम किरदार हमारे रिपोर्टर्स ने भी अदा किया और इसके साथ अभी भी अदा कर रहे हैं। अभी भी हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। जिस तरह से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला शुरू होगा वो लम्हा ब लम्हा हम अपडेट करेंगे और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ अपने नाजरीन तक बर वक्त तमाम तर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज इसी तरह से पहुंचाता रहेगा, तमाम तर सूरत हाल से आगाह रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त जो है वो पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और साथ ही साथ जो है गैर हतमी सरकारी नताइज का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम रहे थे और तमाम दिन जहाँ जहाँ पोलिंग होती रही वहाँ पर सूरत हाल पुरअमन रही और ये खुशाइंद है। बिल्कुल ये खुशाइंद है। अच्छा, थोड़ा सा हम अगर आज के हलकों के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करें, आज जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं कौमी और सूबाई असम्बली की कुल 11 नशस्तें थी जिस पर आज ये इंतखाबात हुए और इसमें से 8 जो नशस्तें हैं वो कौमी असम्बली की हैं, जबकि 3 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं जिन पर आज इंतखाबात का इनेकाद किया गया। कौमी असम्बली की जो सीटें हैं वो पंजाब में 3 थी, कराची में 2 और खैबर पख्तूनख्वा में 3 सीटों पर आज इलेक्शंस का इनेकाद किया गया। वोटिंग हुई और वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। सूबाई 3 नशस्तें जो थी वो पंजाब की तीनों नशस्तें थीं और इन 3 नशस्तों पर हमने देखा कि वोटर्स ने आज वोट भी कास्ट किए हैं। फैसलाबाद का रुख करेंगे और फैसलाबाद से अनीसुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हल्के में कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं। अनीस, आगाह कीजिएगा कहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं और अब चूंकि वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है, सूरत हाल क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जी अपना फैसलाबाद में हल्का NA 108 में मैं मौजूद हूँ और पोलिंग तो ख़त्म हो गई है, तकरीबन घंटा हो गया पोलिंग ख़त्म हुए, उसके बाद गिनती भी शुरू हो गई है, मगर यह कि अभी रिजल्ट आना शुरू नहीं हुए। कुछ जहाँ पे ज़रा ज़्यादा रश था सुबह के टाइम तो बड़े कम लोग थे,
जूं जूं दिन गुजरता रहा, क्योंकि छुट्टी का दिन भी था और फैसलाबाद में लोग ज़रा देर से उठे, उसके बाद 2 बजे के करीब यहाँ पे रश शुरू हुआ। फैमिलीज निकली हैं, खवातीन थी, मर्द थे, और ये सारे, और काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आया 2 बजे के बाद। 2 से 5 तक ज़रा हैवी पोलिंग हुई है और वोटर्स भी निकले हैं। और फिर जिन पोलिंग स्टेशन में वोटर्स अभी मौजूद थे और टाइम ख़त्म हो गया था, जो हदूद के अंदर थे, उनके लिए पोलिंग का उन्हें इजाज़त थी कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा और उन्हें वहाँ पे उन जगहों के ऊपर उन पोलिंग स्टेशन पे टाइम लगा। और शहरी हल्का है, इसलिए ज़्यादा दूर दूर से अपना वो इकट्ठे होने की वो नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि इसका रिजल्ट भी जल्द आ जाएगा। मगर ये है कि अभी गिनती का अमल शुरू हुआ है और ये है कि गिनती का जारी है। बहरहाल सारा दिन जो है ये बहुत ज़बरदस्त इस लिहाज से रहा कि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। हालांकि 354 में से 321 जो है पोलिंग स्टेशन वो हसास करार दिए गए थे, मगर इसके बावजूद 5 लाख वोटर्स थे और अपना कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। आराम से उसकी पोलिंग होती रही है और मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। अभी खैर मौसम अक्टूबर का चल रहा है। बिल्कुल, मौसम भी अच्छा था और इसके साथ साथ इंतजामात भी बेहतरीन किए गए थे। सिक्योरिटी के हवाले से पुरअमन जो है वो पूरा इनेकाद किया गया। वोटिंग के हवाले से बहुत खुशाइन बात यह है कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और यकीनन हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं तो पूरी कोशिश इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी की जाती है कि पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जाए, किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जाए। और आज हमने अपने जितने भी नुमाइंदगान से बात की काशिफ, उन्होंने यही कहा कि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया और बड़े पुरअमन माहौल में पूरी वोटिंग का जो अमल है वो पूरा दिन जारी रहा। और ये इंतहाई खुशाइंद है, इंतहाई मुस्बत है। और इसी तरह से जिस तरह से हमने दिन ब दिन आपको गाहे बगाहे अपडेट रखा, पूरा दिन पोलिंग के हवाले से, पोलिंग स्टेशन के हवाले से, सूरत हाल के हवाले से, गैर सरकारी नताइज का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिल वक्त आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम इलेक्शन के हवाले से भी आपको इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल जी, कुछ मजीद खबरें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, कुछ मजीद मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। यहाँ आपको बताएं, वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के आला सतह इजलास MENAP वज़राए ख़ज़ाना और गवर्नर्स के हमरा वाशिंगटन DC में शिरकत की है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तान के तबाहकुन सैलाब का हवाला भी दिया और उन्होंने माहौलियाती तब्दीली के वाक़यात समेत इलाकाई मईशतों को दरपेश चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली। उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया और फन के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ज़ाना ने MD IMF के जज्बात पर शुक्रिया अदा किया और दरपेश चैलेंजेस के बावजूद फंड्स के प्रोग्राम को मुकम्मल करने का आज़म किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने इंसानी तबाही और मुल्क को होने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। उन्होंने सैलाब से तबाही पर पाकिस्तान के लिए मज़ीद पॉलिसी ताउन की दरख्वास्त भी की। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने IMF और किसीरुल जहती अतिया दहिंदगान से ज़्यादा पॉलिसी सपोर्ट का मुतालबा किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियालिना जॉर्जियो के साथ MENAP वज़राए ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर्स के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने IMF पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान की सूरत हाल पर अपना रद्द-ए-अमल तैयार करे। रद्द-ए-अमल की तैयारी में ममालिक को आबो हवा से पैदा होने वाली आफात के पस मंज़र में जिन मिलते जुलते इक़्तिसादी, समाजी और सियासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी मद्देनज़र रखा जाए। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार जवेद से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान में निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने में IFC के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में ख़ास तौर पर तिजारती मालियात के लिए IFC की शमूलियत को बढ़ाने के मुमकिन ज़राए पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस सिलसिले में IFC को दरकार तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीन दहानी कराई। मुख्तार जयूब ने वज़ीर ख़ज़ाना को IFC की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने एशियाई तरक्याती बैंक के सरबराह मुस्तैसो गवास्कावा से भी मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान के बड़े तरक्याती पार्टनर के तौर पर कई सालों में फराहम की जाने वाली मदद और सैलाब के बाद की हालिया वादों पर एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का शुक्रिया अदा किया। मुस्तैसो गवास्कावा ने वज़ीर ख़ज़ाना को $1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के BRACE प्रोग्राम की मंजूरी और पाकिस्तान को मुसलसल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने कुवैत फ़ंड के डायरेक्टर जनरल मरवान अब्दुल्ला यूसुफ तुनियान अल गानम से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कुवैत फ़ंड के ताउन को सराहा और जारी मनसूबों और सरमायाकारी के मुमकिना नए शोबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक की आलमी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक के सालाना इजलासों के मौके पर हॉलैंड की मलिका मैक्सिमा से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में मालियाती शमूलियत और मसावी बैंकारी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों अतराफ ने ज़ेर बहस मौज़ूआत में तेज़ी से पेशरफ्त हासिल करने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया।
नाज़रीन, कुछ दीगर खबरें शामिल करें तो सरफरंगा कोल डेजर्ट रैली का फाइनल राउंड मुकम्मल। रैली में खवातीन समेत 49 रेसर्स ने शिरकत की। 25 बाइकर्स ने भी इस रेस में हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात क्या हैं, जानेंगे मोहम्मद यूनिस से। सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट जीप रैली के आखिरी रोज मुख्तलिफ कैटेगरीज के फाइनल मुकाबले हुए। प्रीपेड कैटेगरी में 18 ड्राइवर्स मैदान में उतरे। स्टॉक कैटेगरी में 22 रेसर्स मध्य मुकाबिल हुए। रेसर्स ने सरफरंगा ट्रैक को मुश्किल और चैलेंजिंग करार दिया। बट जितना जोर 200 किलोमीटर की रेस में लगता है वहाँ बलूचिस्तान में या चोलिस्तान में, तो यहाँ 70 किलोमीटर पे हमारा उतना ही एफर्ट लग रहा है। ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, ज़्यादा इसके अंदर मज़ा आता है। मैं समझता हूँ मज़ा तो खैर हर जगह आता है, पूरे मुल्क में जहाँ भी हम जाते हैं तो बड़े ऑनर के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी के लिए, मशीन के लिए, इंजन के लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा है। 9 खवातीन रेसर्स ने भी रेस में हिस्सा लिया। पहली बार मकामी फीमेल रेसर्स भी शरीक हुई। बाइक कैटेगरी में 25 बाइकर्स के दरमियान मुकाबला हुआ। इससे कबल वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने रेस का इफ्तिताह किया। जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ बैठ के इसको एक इंटरनेशनल इवेंट बना दें और ये एक ऐसी रैली बना दें जिसपे दुनिया के जो हैं, जो रेसर्स हैं, वो ख्वाहिश रखें कि इस जगह पर, क्योंकि ये इसमें हर वो चीज़ है जो एक टॉप डेस्टिनेशन बन सकती है कार रैली के लिए। गुज़िश्ता रोज म्यूजिक नाइट में फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। रिवायती आतिशबाजी में फन का भी शानदार मुजाहरा किया गया। जीप रैली के शानदार इख्तिताम के साथ साइड इवेंट्स में पोलो, कश्तीरानी और दीगर मुकाबले भी हुए। मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सरफरंगा, शिगर। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमें हमारी टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।